یہ سنتے زندہ جلانے پاک نام میں آپ سب سلامتی ہو۔ میں نے شکر گزار ہوں پہلے اپنے خدا یسوع کا جس نے آج یہ موقع فراہم کیا ہے۔ اس کے بعد خدا کے خواجہ پاسٹر سیمون صاحب کا جس نے دعوت دی ہے، اور دوسرے خادمین کا جو وزٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں، تمام جماعت کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور میں بڑا محسوس کر رہا ہوں کہ خدا کا بھاری مسئلہ یہاں موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میرا نام کئی لوگ جانتے ہیں، کئی نہیں جانتے ہیں۔ میرا تعلق ہے یونیورسٹی چرچ کی نبی کبھی واسطہ اور پاکستان۔ پاسٹر اللہ میرا نام ہے، اور میں یونیورسٹی چرچ میں خدمت کر رہا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آج ہم سب کا ایمان کے وسیلے سے خدا ہم کا جلال ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم اپنے ایمان میں دوسروں کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح ہمارا ایمان مضبوط ہے، آپ سب اس پر مضبوط ہو۔ آئیں جس طرح خدا کے خادم میں جو گایا ہے، آگ کی آگ جب لگ جاوے، اور پاک خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں پاک کی ہوا کی جس نے آج یہ ممکن کیا۔ ہاللیلویا۔ آج اگر ہم خدا سے مسئلہ چاہتے ہیں، اس کی برکت چاہتے ہیں، تو اپنے دلوں اور دماغوں کو روشن کر کے بیٹھیں، پیچھوں کی فکر مت کریں، کیونکہ جو دوسری فکر کرتا ہے وہ کبھی آگے نہیں نکلتا۔ ہاللیلویا۔ خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں، لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، اور جب ہم مسیح کے کلام کو سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو ہماری زندگیاں کیا پائیں گی؟ اجازت پائیں گی۔ ہاللیلویا۔ سوائے میں ساتھ دیکھیں، خدا کا بندہ داؤد نبی، خدا نے کس طرح مسرور ہے، اور کس طرح اس نے خدا کی اس مسئلہ کو حاصل کیا، اور کس طرح وہ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ زبور 23 زبور 23 اور اس کی 6 آئے، ہم اس کی ایک بات پڑھیں گے، بڑے غور سے ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ ہم ایک بات پڑھیں گے، بڑی خوبصورت خدا کے کلام میں سے لکھا ہے، بلکہ ہم اس کی 5 اور 6 دو آیتیں پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ آپ کی بات کو سنیں گے، بڑے غور کے ساتھ ضرور پڑھیں گے، 23 میں سے اس کی 2 آیتیں پڑھیں گے۔ لکھا ہے، میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، انہیں میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہے گی، اور میں خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے پر خداوند کی برکتوں کو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا آج اس کلام کے وسیلے سے بہت ساری برکت عطا کرے۔ آمین، آمین، آمین۔ جس طرح داؤد نے فرمایا، خدا نے اس کے اپنے پاک روح سے اس کو مسح کیا، اور اس نے اس کو عطا کیا، اس نے خدا سے مانگا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے 7 باب کی 7 آیت میں، مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا، اور ہم مانگیں گے تو ہمیں عطا کرے گا، ورنہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے خدا سے مانگا، اس نے کہا میرا پیالہ لبریز ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیالہ ہے کیا چیز، یہ لبریز کس طرح ہوا ہے؟ کیا ہمارا پیالہ کون سا ہے؟ یہ معاف کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا پیالہ ہمارا روح ہے، ہمارا دل ہے۔ ہاللیلویا کہے گا کوئی یسوع کے نام سے؟ ہمارا دل کیا ہے؟ ہمارا پاک روح خدا کا جو ہے ہمارے دل میں بستا ہے، اور پیالہ کیا ہوا ہے؟ لبریز بھرا ہوا ہے، خدا کی پاک معمولی کے ساتھ بھرا ہوا ہے، خدا کے عظیم کام کرتے ہیں، خدا کے
किसी बला से और जिस के ऊपर खुदा का मसला होता है ना वो कभी घबराता नहीं है। वो मर भी जाता है ना तो उसके अंदर वो जो पीनस की कसरत जो है बात होती वो रह जाती है। किस तरह रह जाती है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आईने से निकाल हमें इसकी जरूरत है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें इसकी जरूरत है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। आने से देखें दूसरा सलातीन और उसका 13 बाब और उसकी 20-21 आयत हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। जी भाई साहब आप पढ़ेंगे जरा बुलंद आवाज के साथ। अलीशा के अंदर खुदा का नशा था, उसने अपने उस्ताद से लिया था। ये हम सब जानते हैं कि उसके अंदर खुदा का नशा था और वो नशा हमेशा कायम रहता है। जी 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 जी। और अलीशा ने बात पाई और उन्होंने उसे दफन किया और नए साल के शुरू में मोआब के कच्चे मुल्क में घुस आए। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जैसा नजर आया तो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया और वो शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा। हालेलुया। क्योंकि जो ईमान आएगा वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाएगा वो मुजरिम ठहरा जाएगा। ये खुदा के लोग थे, खुदा का मसा शुरू से अपने लोगों के ऊपर हमेशा ठहरा रहा है क्योंकि वो खुदा के साथ चलते हैं। उन्होंने अपने लोगों को अपने घरों की तरफ नहीं देखा, अपने जियों की तरफ नहीं देखा, बल्कि उस खुदा की बात को माना। अलीशा ने क्या कहा? अगर तू अलीशा के जो उसका सवाल है उसने बयान किया कि मुझे खुदा ने यरदन में भेजा है, मुझे खुदा ने फिलिस्तीन में भेजा है, मुझे खुदा ने फलानी जगह भेजा है, तो एलिया ने उससे कहा, एलीशा ने कहा कि तूने जहां भी जाना है मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। और जब खुदा हमारे साथ साथ है हमें किसी बात का फिक्र नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि देख तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कर दूं। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तेरे लिए का रुकना ऐसा मत बना। आज हमें दुनिया के ख्वाहिशों में नहीं रहना, हमें दुनिया के साथ नहीं रहना। और उस कहता है अगर मैं दुनिया को दोस्त रखता तो मैं आज खुदा का बंदा आपका रसूल आज़म बयान कर रहा है इस चीज को। खुदा पाक की हवा खुद बयान कर रहे हैं, उनके लोग बयान कर रहे हैं, तो हम और तुम क्या चीज है? उसने कहा मैं बात की रिवायत करता हूं उसको। ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो एक धक्का नजर आया, सो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया और वो शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। हालेलुया हालेलुया। ये उसका मसला के साथ था। तो ने कहा कि मैं खुदा के घर में क्या करूंगा? सुकूनत करूंगा, उसकी रहमत हमेशा मेरे साथ रहेगी और हकीकत में उसकी रहमत अपने लोगों के साथ साथ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के लोग हैं, उन्होंने खुदा से मांगा था तो खुदा ने उनको अता कर दिया। ये देखें कि बात ऐसे थे कि जिन्होंने खुदा को नहीं बल्कि हकीमों को, तबीबों को, डॉक्टरों को और उनके पीछे लगे रहे। उसने कहा मैं आशा की आपको एक तफसील सुनाने लगा हूं कि आशा बादशाह के गांव में लोग लग गया। दूसरा तवारीख में इतिहास के 16 बाब की 12 आयत के अंदर उसने ये लिखा है कि जब उसने बादशाह से कहा, बादशाह के गांव में लोग लग गया कैंसर का, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं खुदावंद को तलब करूं, क्योंकि वो खुदा के रूह से मामूल नहीं था, वो खुदा से दूर था, वो गैर मुस्लिम को मानने वाला था, वो जादूगरी को मानने वाला था, वो वकीलों के पीछे गया, तबीबों के पीछे गया, मगर उसने खुदा को नहीं पुकारा। अगर वो खुदा को पुकारता तो वो जिंदगी पा जाता। और जब उसने कहा कि ठीक है
साथ वो कब्रिस्तान में क्या हो गया, दफन हो गया। मगर उसके साथ बुराई नहीं गई, रहमत नहीं गई, उसकी बात, उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो गई। मगर आज बुजुर्ग गौर नबी जो है वो कहता है कि मेरा पहला निर्देश है, जैसे मैंने आपसे बयान किया कि जिसके अंदर पाक रूह होगा, जिसके अंदर खुदा का रूह होगा, वो जहाँ भी जाएगा वो देता ही जाएगा और अपने अखलाक की बुनियादी को क्या करेगा, देता ही जाएगा, बयान करता जाएगा, क्योंकि जब तक उसके दम में दम नहीं है, जब उसका दम निकल जाएगा तो हम लोग छुपा के पीछे भागते हैं कि शादी को कि हमें छुपा मिल जाए, एक पादे को छोड़ा दूसरे पादे को पकड़े, दूसरे पादे को छोड़ा तीसरे पादे को पकड़े, असी होते कोई कैसे होते कोई बड़ी छुपा हो तुम शादी को ढूंढो, छुपा को ना ढूंढो, बल्कि शादी को ढूंढो जो जिंदगी देने वाला खुदा है, जो जिंदगी देने वाला खुदा है, वो मौत में भी तेरे साथ होगा, उसको ढूंढो। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही को, तुम्हें सब चीजें क्या मिल जाएंगी। यहूदी लोग यीशु को कहते थे, शगीरों को कि हमें दिखा कि यीशु कौन है, कैसे जवाब करते थे, तो जान के करते थे, क्योंकि उन सबके बाल बड़े थे, उन सबकी दाढ़ियाँ थी, तो कहते थे तो ये बता कि वो कौन है। यहूदी यीशु जो था यीशु के साथ ईद के लिए आए, तो जब उनसे बयान किया गया कि वो कौन सा है, तो यीशु ने कहा कि वो नहीं जानते, वो सब कुछ जानते, वो शरा के आलम है। आज इस तरह तुमने से बाहर से नहीं कहीं से, तुमने से ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो इस कलाम की तारीफ को क्या करेंगे, गुमराह करेंगे। अगर हमें गुमराह नहीं होना, बल्कि ईमान में, जैसे मैंने पहले बयान किया, हमारा ईमान ऐसा पुख्ता मजबूत होना चाहिए कि अगर हम पहाड़ों को भी उठोगे तो यीशु के नाम से हर जगह से उसका 22 बाप और उसकी 30 आए, क्योंकि हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान क्या था, एक जुदाई की दीवार खड़ी थी। हमारे और खुदा के दरमियान क्या थी, एक जुदाई की दीवार खड़ी थी, जो कि हमें खुदा से मिलने नहीं देती जी। 22 बाप की 30 आए, ठीक पढ़े। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो सील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रचना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे हैरान ना करूं, पर कोई ना मिला। बस मैंने अपना कहर उस पर नाज़िल किया और अपने गज़ब की आग से उनको नाश कर दिया, और मैं उनकी रबश को उनके सरों पर लाया। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है कि जो रखना है ना, ये रखना क्या है, ये रखना क्या है कि हमारे दरमियान जो खुदा की दीवार से दरमियान में लोग खुदा ने अपने बेटे के वसीले से क्या कर दी, पूरी कर। हालेलुया। जैसे उसने कहा, अगर यूहन्ना की 3 की 16 में देखते हैं तो क्या लिखा वहाँ पे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। उसने उस रखना की दीवार को गिरा के पूरा कर दिया, क्योंकि वहां पे लिखा है कि कोई ना मिला, कोई नहीं था जो उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता। जिसका बाइबल पर इसमें लिखा है, उसने कहा कि देख मैं उसके ऊपर अपना गज़ब नाज़िल करूंगा अपनी आग में, और वो क्या हो गया, फना हो गया, खत्म हो गया। मगर खुदा ने फिर भी दुनिया से मोहब्बत की उस रखना के लिए। वो रखना का
खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े दोस्तों का वादे में फरमाया, मैं दुनिया का नूर हूँ। यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब सच्चाई को कबूल कर लोगे तो सच्चाई को क्या करेगी? साथ करेगी। 8 बाब की बात है। हालेलुया, जिंदगी का नूर पाएगा। ठीक है, तो आपने बड़े-बड़े काम खुदा के लोगों को क्या करो, ज्ञान करो, बताओ जाके, ताकि उनके ईमान को क्या हो, मजबूती मिले, ईमान में बढ़ते जाए। इसी की बख्शिश में क्या है, और जब और सच्चाई को तुम सच्चाई से वाकफ होगे तो सच्चाई को तुम क्या करेगी? और जब सच्चाई हमको आजाद कर देगी तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब हम तस्लीम है, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने फरमाया, अब तो एक बार आ गया बेटा बन के चलनी में आ गया, बेटा बन के चलनी में आ गया। लोगों ने खुशियाँ मनाने लगे, हमारा यीशु जिंदा आ गया, अपने खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया। जब खुशी मनाई गया, उसकी सालगिरह मनाई जाती है, खुशी मनाई जाती है, मगर उसने कहा कि अब तो वो बेटा बन के आ गया, जब दोबारा बादलों के ऊपर आएगा तो वो बेटा नहीं होगा, फिर वो क्या होगा? मुंसा बन के आएगा, तो उसके हाथ में तलवार होगी और वही लोग उसकी बारगाह में और वही लोग उसके इस्तेमाल के लिए उठ के खड़े होंगे जिनके जामे मरे थे खून से जुड़े होंगे, जिनके जामे मरे थे खून जुड़े होंगे, वही लोग। और उनको बाकियों को वहां पर डाला जाएगा जहां पे रोना और दांत का हिस्सा। अगर हमें इस दोज़ख की आग से बचना है, बेटे ने मुझे मूवी दिखाई, उसके अंदर दिखाया गया कि वो जब यीशु अदालत पे आया, तब पे बैठा है, तो सबके ना अदालत में जमा किया गया, तो सबको उठाया जा रहा है बार बार, उनको को भी उसका दिखाई गई है, वो भी आ रहे हैं और उनको वो जो लोग थे साहब, जो फरिश्ते थे, जो लोग साहब थे, वो साथ खड़े थे और जो उसके साथ बुलाने वाला था, उसने कहा कि ये ऊपर आते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, जो उसके गति में मर गए थे, गुनाह में मर गए थे, उनके वास्ते क्या था, उन्होंने कहा कि दोज़ख की आग में डालो, साफ दिखा रहे हैं कि दोज़ख की आग में जलती हुई में डालते, बार बार जलती है और निकालते और डालते था। तो जब दूसरे दिन उनकी पोशाकें बनाई गई और उनको क्या किया, उड़ा के। हालेलुया। अगर हम लोग आज उसको कबूल करते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये हमें जिंदगी देने के लिए आया। तो खुदा आज हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे, मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, जिसका गौर का कलम रहता आज हम सबके प्यारे जिस तरह दे मिलती है। यीशु मसीह के पाक और